Very good Right. afternoon, sir, for Yeah, accepting our invitation to come on our channel, JBHM Kolkata. Its channel is JBHM Kolkata. The basic reason for doing this podcast is, sir, to create awareness among the upcoming students, to give a better insight through the industry experts like you. Sir, you already reached the optimum position in the housekeeping. So, leading also at a very young age, what I see. So, this podcast will develop a interest and motivate also students to go to housekeeping. पर सर हम लोग थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स या ऑडियंस के लिए वी विल इज हिंदी इंग्लिश बोथ सो दैट okay, I'll try to speak also and as well as English. So both I can communicate. ओके ओके So it's थैंक fine यू सो मच सर तो फॉर्मली with you. वी स्टार्टिंग द पॉडकास्ट सर मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि Hmm. आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया और हाउसकीपिंग क्यों चूज किया So, okay, so thanks for giving opportunity to connect with माय you. प्लेजर Uh, okay, so as you know, my name's Vipin Pandey, जी and why I choose housekeeping हम्म when I intern in hospitality sector in ओके institute. I feel it's very easy to get promotion हम्म and very easy to understand a work. ओके Two things. People come, so how can they understand very easy things? So you cannot understand some maybe you can understand kitchen is take time. But if you see what is in an eye, present of eye, you can do everything. So that's why I choose the housekeeping. Right? And as I say, I started my career as a hotel operation trainee from Pride Group of Hotel. And after completed, I just joined as a Aurora group of hotels as a housekeeping supervisors. Then I left. Then I joined Lemon Tree Premier Bangalore as a housekeeping executive. Then I finished couple of years. Then I joined Marriott Group of Hotels. So during my career in Marriott Group of Hotels, I completed my manager development programs. So there is a certain time once you complete it, then company they offer you to become a manager. So before you manager reach, they offer you programs. So you have to finish 1 year program that is called manager development program. So once you finish that program, you'll become a directly manager. So I was the one who got first in Marriott to Starboard Property management. So I ओके was first manager who got promoted with transfer from the Courtyard Kochi to Lambadan Kochi. Then ओके after I left, then I joined Courtyard Agra. Then after that I joined Fun Group Hotel as a studio housekeeper. Then I left. Then I joined again Fairfield as a studio housekeeper. Then I came here in Surat Marriott as a house manager, as a department head. These are my career's goal. And about my education, if you ask, then I have completed my Bachelor of Hotel Management in Varanasi, and I have completed Bachelor of Commerce in Varanasi, and I have done executive MBA from the Bangalore. And this is my just career and my educations. So how many years you have completed in the industry, sir? Going to complete 14 year. Great. And already a housekeeping manager. So then what is your next goal? You're already in the optimum position of a Next goals very soon we'll get a position of the room division managers. okay. Very soon. So once we complete room managers for 1 year, then I'll become a hotel manager, a general manager somewhere else. Mhm. Sir, being in the industry, do you think that housekeeping is got that not that exposure, glamour part, जो other departments का glamour थोड़ा ज्यादा है जैसे फ्रंट ऑफिस या हाउसकीप फूड प्रोडक्शन का हाउसकीपिंग थोड़ा सा ग्लैमर पार्ट में कहीं थोड़ा सा लैक है कोई इसका रीजन है कि क्यों ऐसा इसके अगर आप बोलो जाए तो दो रीजन होती है. पहला होता है कॉस्ट सेंटर, दूसरा होता है रेवेन्यू जनरेटिंग. रेवेन्यू जनरेट कौन करता है? फ्रंट ऑफिस जनरेट करता है, राइट हम भी जनरेट करते हैं, राइट. और हाउसकीपिंग क्या है? कॉस्ट सेंटर है. हम पैसे खर्च करते हैं, अच्छा राइट. हर कोई पैसे बचाना चाहता है, हम्म,
कि हम कम पैसे में अच्छा काम कैसे करें। हमारा हम्म, घर होता है ना कि हम कम पैसे में कैसे काम करें, जी। कौन करे। बड़ा हम्म, बेटा अच्छा कमाता है तो वो थोड़ा उसको ज्यादा सहूलियत, छोटा बेटा कम कमाता है तो उसको थोड़ा ज्यादा हम्म, सहूलियत नहीं मिलती है। हम्म, सेम इंडस्ट्री है, बट हम्म, नाउ डेज इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव चेंज। इफ यू हम्म, सी बिगर लेवल, डेफिनेटली हाउस इज देयर। हाउसकीपिंग, अगर जिसने हाउसकीपिंग जॉब किया वो आज आने वाले समय में एक अच्छा मैनेजर, जीएम बन सकता है, वीपी बन सकता है। इट्स वेरी इजी, एंड हम्म। वी हैव couple of example in industry. They reach a good level, but just focus your work, focus your think what you're going to do in future. That's it. In the student perspective, what is the importance of housekeeping in the hospitality industry? What is this perspective and what is the importance? One thing just I can say, everything depend on your just grooming, your discipline. If you are very much disciplined, you will reach a good level in No, sir, housekeeping. I recycle the question. Importance of housekeeping department in the hospitality segment. Okay, so okay, sorry. Importance of the housekeeping is a one of backbone of department in the hospitality. Housekeeping can create a good environment to guests can stay, can see the cleanness, can see that environment where can get, see the hygiene is maintained, where can chef you feel yes I came somewhere like आपको और नाम देखे होंगे, हाउसकीपिंग इज Hmm, अ मेजर जॉब, सारा जॉब हाउसकीपिंग का रहा। तो hmm, वहां पे सारी हाइजीन जो भी होती है हाउसकीपिंग ही प्रोवाइड करती है hmm, तो गेस्ट के एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए। hmm, और हमारे आप फूड देखते हैं, फूड के आप 4 डिश देखते हैं, बट कैन यू इमेजिन दैट आप रूम्स के जो फोटोज लगते हैं होटल में, रूम्स पिक्चर्स लगते हैं, हु प्रिपेयर, हाउसकीपिंग कैन प्रिपेयर, okay. राइट। तो सर ये मैं जानना चाहूंगा, बहुत तो लेमेंस में जनरली जो परस्क्रिप्शन है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस आर द मेजर टू फंक्शंस ऑफ हाउसकीपिंग। तो मैं थोड़ा सा इसमें चाहूंगा कि अगर आप इलाबोरेट करें, इसके अलावा भी हाउसकीपिंग का और क्या फंक्शन रहता है एक होटल में? हाउसकीपिंग का फंक्शन अगर होता है तो हाउसकीपिंग क्लीनिंग मेंटेनेंस है, हाउसकीपिंग कम टू लॉन्ड्री, आपका हॉर्टिकल्चर्स इज अ मेजर रोल्स, विच इज हेड एंड रोल्स, ओके। कि आपका गार्डन मेंटेनेंस, आपका फ्लावर अरेंजमेंट्स, फ्लावर अरेंजमेंट्स के टाइप्स कितने, लॉबी में क्या लगेंगे, गेस्ट रूम में कौन से फ्लावर अरेंजमेंट लगेंगे, वीआईपी इज कमिंग सो कौन सा अरेंजमेंट लगेगा। सो दे शुड नो दैट, दे शुड नो अबाउट द डेकोरेशंस, क्रिसमस में कैसे डेकोरेशन करना है, शुड बी गेट अ बिफोर आइडिया, दिवाली में कैसे डेकोरेशन करना है अकॉर्डिंग टू दिवाली। देन यू हैव टू से 15 अगस्त हमें क्या डेकोरेशन करना है, 26 जनवरी के लिए हमें कैसे डेकोरेशन करना है, सम वीआईपी इज कमिंग, सम मिनिस्टर्स कमिंग, हमें डेकोरेशन कैसे करना है। वो पर्सपेक्टिव, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, according to them, when you're choosing a housekeeping person, new first person, तो क्या आप जनरल क्राइटेरिया देखते हैं उस बच्चे में या जो हाउसकीपिंग में अपना करियर स्टार्ट करने जा रहा है? हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रंट ऑफिस और एफएनबी सर्विस और फूड प्रोडक्शन? हाउसकीपिंग इज टोटली डिपेंड ऑन योर आई डिटेल्स। ओके। आपकी आई डिटेल्स होनी चाहिए आपको। एक सिंपल लैंग्वेज रहना चाहिए आपको, डस्ट ढूंढने का आ गया, हम्म, यू आर बेस्ट हाउसकीपर। हम्म, यू नो वेयर इज डस्ट, आर यू एबल टू क्लियर द डस्ट, यू आर द हाउसकीपर। ओके। One second is a discipline. Housekeeping discipline is very difficult and should be maintained. अगर जो हाउसकीपिंग का डिसिप्लिन मेंटेन कर पाता है वो बहुत इजी हो जाएगा। उसका टाइमिंग, टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके। टाइमिंग, फर्स्ट इज आई फॉर डिटेल, सेकंड इज डिसिप्लिन, थर्ड इज योर टाइमिंग। अगर या ये 3 क्राइटेरिया किसी बच्चे फॉलो करता है, तो ये मैं जानना चाहूंगा आपसे, अगर कोई बच्चा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आना चाहता है, हाउ यू डेवलप दिस स्किल्स? वो अपने स्टूडेंट टाइम में कैसे ये स्किल्स को डेवलप करेगा? क्योंकि वहां पे तो आईटी और जेटी छोड़ के जो अगर ट्रेनिंग का डेवलपमेंट का चांसेस मिलता है, तो रेगुलर अपने पढ़ाई के साथ ही कैसे डेवलप कर सकता है इन दिस पर्सपेक्टिव? उसके लिए कुछ सजेशन आप देना चाहें तो। सबसे पहले आज के जो बच्चे आते हैं, हम्म, हमें एक होता है कि एक जॉब टाइमिंग होती है 9 आवर। हम्म, हम बच्चों को सबसे पहले होते हैं आप 9 आवर अपने आप को कंफर्टेबल करो, ओके। आप 9 आवर अपने होटल में टाइम दो, अब 9 घंटे आप होटल को घूमो, आप देखो, देन यू हैव टू स्टार्ट
वन बाय वन आपका क्या काम करने में मन लग रहा है, हम्म, right? Are you able to make rooms? Are you able to sit in department to see the paperwork, हम्म, to handle the guest calls? हम्म, To are you able to handle the laundry services? Are you able to handle the public area maintenance? हम्म, So these are work we have to see that in this 1 week. उसका डिसिप्लिन देखते हैं, उसको जिस पे हमें ग्रो करना होता है। एग्जाम्पल, बच्चा कल को अगर काम अच्छा कर रहा है बट वो जो है ड्यूटी लेट आ रहा है, सुबह हम्म, अगर 8 की शिफ्ट में 10 बजे आ रहा है, तो हम हम्म, उसके ड्यूटी टाइम पे काम करेंगे कि आपको और पहले आना है, आपको उसके इम्पोर्टेंस बताएंगे, उस 2 घंटे के मॉर्निंग के इम्पोर्टेंस बताएंगे। यू मिस दैट 2 hours फॉर योर मॉर्निंग डेज। हम्म। और कंपैरेटिवली सर ये भी देखा गया है कि हाउसकीपिंग में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाकी डिपार्टमेंट से काफी फास्ट है। इसके बारे में यस, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे आप भी एक एग्जाम्पल है इसके, तो स्टिल क्योंकि होता आप। क्या है कि अगर आप बाकी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। ओके। हमारे डिपार्टमेंट में टाइम मैनेजमेंट किए हैं, आपने अगर एक पोजीशन पे 1 साल दिए, हम्म, देन यू लर्न सर्टेन थिंग्स है कि आपको ये चीज सीखना है। हम्म, यू नो द हाउ टू चेक रूम्स, यू नो द हाउ टू मेक रूम्स, यू नो द वीआईपी क्राइटेरियाज। सो अगर ये सब सारी छोटी छोटी चीजें अगर आप सीख जाते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट पोजीशन। सो हम्म। ऐसे करके आप पोजीशन थोड़ा फास्ट मिल सकता है आपको। अच्छा। और अभी लाइक अदर सेक्टर्स हाउसकीपिंग से भी कोई हायर फॉर जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता है? उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। हाउसकीपिंग का करने के बाद उसको फ्रंट ऑफिस के भी उसको काम आना चाहिए। बेसिकली उसको रेवेन्यू मैनेजमेंट आना चाहिए कि हम्म, हाउ ही मैनेज होटल रेवेन्यू, कि उसको इन एंड आउट। एंड हाउसकीपर वन ऑफ द बेस्ट जनरल मैनेजर इन माई आई, हम्म, बिकॉज हाउसकीपर कैन मेंटेन एवरीथिंग। हाउसकीपर हैव अ यूनिटी, हाउसकीपर कैन मेक एवरीथिंग। इफ से द हाउसकीपर आपका जो है मेंटली एंड फिजिकली बोथ आर प्रिपेयर। उसको अगर 200 रूम की अगर इन्वेंट्री है हम्म। तो उसको मेंटेन करना है, शाम को 5 बजे उसको रूम देना है। उसके पास कैपेसिटी है कि 200 रूम को कैसे मेंटेन करना है। उसको मालूम है 200 रूम में हमें कैसे जो है हमारे कॉस्ट को बचा सकता था। Right, रेवेन्यू लाना ही बड़ी बात नहीं है, रेवेन्यू को बचाना वो बड़ी बात है। right, हाउस कैन डू दिस। हम्म, तो अपने अगर होटल में आप अगर रूम्स की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, हम्म, कंपेरिजन है फैमिली, हम्म, तो रूम की प्रॉपर्टी कैसे बचेगी अगर हाउसकीपर को अपने रूम्स के फ्यूचर्स नहीं मालूम होंगे। right. रूम्स के कैसे क्लीनिंग करना है, मार्बल पे कैसे में क्या हमें केमिकल डालना है, कब कब डालना है, कब नहीं डालना है। हाउसकीपर कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो सर आप जब कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है एज ए एचओटी या फिर एज ए इनिशियल ज्वाइनिंग, तो आप उसको कैसे ट्रेन करते हैं? बिकॉज मेरिट में एक सेट ऑफ प्रोग्रेशन है जिसका आप लोग फॉलो करते हैं। तो हाउ यू डेवलप टैलेंट इन मैरियट इफ वन वांट टू ग्रो इन मैरियट ओनली? सबसे पहले तो उसके साथ बैठते हैं, फ्रेंडली बात करते हैं, मैं कैसे आगे जाना है, तुम क्या कर सकते हो, तुमने इससे पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम्हें बेड बनाने में इंटरेस्ट है, तुम्हें जो है तुम्हारा आइडिया तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा पेपर वर्क इसमें कंप्यूटर आता है। तो ये सब चीजें हम पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करते हैं। ओके। तो ये मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ सपोर्ट रहता है, ऐसा कुछ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रहता है बच्चों के लिए जो? मैं कुछ सर्टेन हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको हमें मेंटेन करना होता है। मैनेजमेंट हमें एक टास्क देती है, उसको हमें कंप्लीट करना होता है। ओके। तो सर इस पर मैं और भी जानना चाहूंगा कि अभी सब एरियाज में नए नए ट्रेंड्स आना स्टार्ट किए हैं। तो आप यह इसमें हाईलाइट करना चाहेंगे व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन हाउसकीपिंग व्हिच यू आर फॉलोइंग व्हिच वाज नाउ चेंज फ्रॉम द प्रीवियस वंस? व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स यू आर फॉलोइंग इन हाउसकीपिंग? अभी मशीनरीज का थोड़ा ज्यादा चलन है। मशीनरी पे ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे पहले हमारे पास मशीनरीज नहीं होती थी स्टार्टिंग व्हेन आई व्हेन माय ट्रेनिंग, बट नाउ डेज मशीन आर मोर। फिर द पब्लिक एरिया मुझे अगर 200 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट का अगर मुझे बैंकेट अगर मॉडल का अगर मुझे अगर क्लीनिंग करना है, तो पहले जो है क्लीनिंग में डिफिकल्ट आती थी मैन पावर। अभी हमारे पास मशीनरी है, अभी हम विद इन 20 मिनट में हम वो सारी एरिया क्लीन कर सकते हैं। तो ओके। वी आल्सो जस्ट डिपेंड ऑन मशीनरीज। तो ये जो न्यू मशीनरीज और न्यू ट्रेंड्स है, इसके लिए फिर न्यू ज्वाइनिंग का स्पेशल ट्रेनिंग मिलता है और सेटअप की तरफ से? यानी
पता नहीं, इसलिए अभी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि ही नोज, ही एंजॉय हिज वर्क, कि चलो सर मुझे अच्छा एकदम मशीन चलाना अच्छा लगता है, मुझे मोबाइल में ऑपरेट करना अच्छा लगता है। नॉट एज वी हैव टू सी दैट अभी हमारे फ्लोर्स पे रूम रिलीज करना है, वी हैव टू सी द रूम्स एंड वी कैन रिलीज रूम्स बाय मोबाइल, बाय टेलीफोन। हमें कुछ रूम का चेक करना, हम सारा कुछ ए टू जेड अभी हमारे सारे मोबाइल पे है। तो सर आप तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, which into lots of people, housekeeping department. How you able to manage the things? मतलब इतना बड़ा वर्कफोर्स को कैसे हैंडल करते हैं आप? अह, देखिए अपना शेड्यूल होता है, हम्म। हमें एक टाइम पे अपना फ्लोर देखना है, टाइम पे हम पब्लिक एरिया में जाते हैं, टाइम पे हम जिम जाते हैं, टाइम पे हम अपने गार्डन जाते हैं, हम्म। हमारे एक टाइम में हम बैठ के पेपर वर्क चेक करते हैं, टाइम पे जो हम फ्लोर पे जाते हैं तो हमारा होता है कि चलो अगर 8 फ्लोर है एग्जाम्पल, तो हम आज 2 फ्लोर के बच्चों से आज हम बात करेंगे, कल हम 2 फ्लोर के बच्चों से बात करेंगे, कैन सिट 5 मिनट टू चिट चैट की कैसा चल रहा है, कैसा आपका ग्रोथ चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, सो आई कैन चेक विद देम। So every week we have to interact with every peoples नहीं। to understand how he is performing. हम्म। I can make a plan for his career path. तो सिंस सर आप एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे भी हैं और सर्विस इंडस्ट्री में जहाँ पे वी वर्क अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स और द गेस्ट, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है? हो पाता है, नहीं हो पाता है? Uh, देखो पर्सनल प्रोफेशनल मेंटेन करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन वेरी स्ट्रिक्ट विद टाइम मैनेजमेंट। ओके। इफ यू थिंक चलो कल कर लेंगे, इट विल नेवर कम। थिंक टुडे वी हैव टू फिनिश, चलो आधा घंटा हो गया कोई बात नहीं, बट कल के लिए 2 घंटा नहीं छोड़ना, देन वी हैव टू मेंटेन इट ओके। वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर थिंक कि नहीं वी हैव टू लीव बाई होटल्स बाई 6। आज के डेट में क्या होता है कि अगर हमें शाम को 7 बजे हमारी ड्यूटी खत्म होती है, आप 7:30 मत करो, आप 7 बजे घर जाओ, चलो 5 मिनट 10 मिनट कभी अगर कुछ आप बिजी हो गए, आई अंडरस्टैंड, बट डोंट ट्राई टू टेक 1 आवर, यू लीव, एंड इफ यू मेंटेन योर टाइमिंग योर लाइफ विल बी इजियर। आप पर्सनल भी मेंटेन करोगे, प्रोफेशनल भी मेंटेन करोगे। एंड सेम थिंग आई ब्रीफ माई टीम, you make your capacity to finish your task on time, go outside, enjoy your day. ओके। सिंसियरिटी विथ टाइम मैनेजमेंट, अगर ये दोनों रहा तो वर्क लाइफ बैलेंस रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Right. ओके। सर इस दौरान आपका इतना दिन का 15 साल का टेन्योर रहा, ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स रहे होंगे, एक दो मेमोरेबल मोमेंट्स आप शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स लोगों के साथ? मैं कोटयार्ड कोचिंग था, ओके। वहाँ पे होटल्स उसमें अगुनसी लो चल रही थी, हम्म। सडनली 2-3 फ्लाइट्स का कुछ ले हुआ आया, मैं शाम को वही 8 साढ़े 8 बजे मैं घर जा रहा था। दैट टाइम आई वाज डिफरेंट रोल्स, सो माय स्टडी वाज लीव, सो आई वाज टेकन द डिपार्टमेंट, एंड फोन आया कि भाई मुझे 60-65 रूम मुझे चाहिए, हम्म। और शाम को सारे बच्चे जा चुके हैं, आपको बच्चे को बुलाना और शिफ्ट भी करना, स्टेक अराउंड 2 आवर मिनिमम, अगर आप उनके अकोमोडेशन बुलाते हैं, घर से बुलाते हैं, राइट। तो 60 आपको 1 से 1.5 घंटे अंदर देना है, 1-1.5 आवर, प्लस आपको एयरपोर्ट के सामने होटल है। तो उस टाइम पे आपका प्रेजेंट माइंड करता है चलो हमें जो एक मेरे पास 5 से 10 मिनट टाइम था मुझे टीम इकट्ठा करने के लिए। हम्म। बस मैंने हर एक डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग को इकट्ठा किया, जो हाउसकीपिंग काम कर गए थे, जिनको मैं पर्सनली जानता था क्या काम कर सकता है, मुझे मालूम है कौन क्या कर सकता है। राइट। दैट टाइम बड़ी हमारे थे फाइनेंस मैनेजर, तो अब हमारे लिए उनका भी यूज हमको करना था। देन आई यूज हिम फॉर की, कि आप डोर ओपन करेंगे आपको बस ये काम रहेगा, देन वी हैव टू क्लियर। सो विद इन 1.5 आवर, नाउ 2 आवर्स वी हैव टू कंप्लीट, but 65 rooms we have to release for the guest. Guest is can easy check in, so I get a certificate. Same I got executive of the year, which I take certificate from US also. So बहुत सारे मोमेंट रहे, एंड 2 थिंग्स और मोमेंट करना चाहूंगा। कुछ गेस्ट होते हैं जो कुछ आर्टिकल्स अपने भूल के चले जाते हैं, एग्जाम्पल कभी ईयरबड्स हो गए, कुछ गोल्ड हो गए, ऐसे काफी सारे इंसिडेंट है जो मैं गेस्ट को पर्सनली कॉल करके उनको बुला के उनको उनका चीज हैंड ओवर किया। और एक गेस्ट का मैंने इंसिडेंट में मैंने जो है जान बचाई, उनको जान सीपीआर बचा। देके। ओके।
Great. और में फेल तो गया एंड देन आई वाज कमिंग। मुझे लगा मैं नया नया सीपीआर सीखा था, कैसे देना मुझे एडी उसी सीखा था। देन मुझे लगा चलो आज मौका मिला है, आज यूज कर लेते हैं। देन लकीली आज डेमो में सीखते थे, मैंने कहा चलो आज हम सीखते हैं। आज हम अगर है तो अपना पूरा 100% देते हैं। लेट्स सी कि हमने क्या सीखा, सही सीखा है कैसा सीखा है। सो लकली अच्छा हुआ। देन आई गॉट आल्सो एप्रिसिएशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, सेम डॉक्टर्स हॉस्पिटल से प्रेसिजन आया कि आपने टाइम पे सीपीआर करते रहे जब तक आप एम्बुलेंस में नहीं पहुंच गए। सो दैट आई एम लकी फॉर दैट आई डन Great. Saving your life is nothing that more satisfying than इट। that. तो अभी तो सर ऐसे तो करिकुलम में सीपीआई लाइफ सेविंग स्किल्स आ गया, होटल की तरफ से भी देयर इज अ स्पेशल सेशन. There is AED, which we get training from that Red Cross team, Okay. which you have to complete it. So I got 2 times to get a training with TNF forms, which I completed. तो हॉस्पिटैलिटी में एक और आपसे बात सुनने में लग रहा है कि आप काफी जगह ट्रैवल कर चुके हैं अपने करियर में. सर कौन कौन से जगह पे आप रह चुके हैं पूरे इंडिया में? मैं केरला में रहा, बेंगलोर में रहा, और महाराष्ट्र में रहा, ओके. एंड गुजरात में। ओके. 5 states you have covered. साउथ एंड गुजरात, दो मेरा थोड़ा ज्यादा। And you belong from Banaras. यस। You belong from Banaras. तो कैसा रहा आप being from the eastern part of the country, working in the southern part and then the western part? How was India like this? Nothing, just focus your work. Nothing, just you focus on work. In South India, if you are good, you know that vegetarian, non-vegetarian का थोड़ा सा होता है, nothing about that. आप वेज खाते हो, आपके लिए थोड़ा सा आउटसाइड केरला, मतलब होटल के बाहर जाते हो तो थोड़ा सा आपको अलग फील होता है। बट आप नॉन वेज खाते हो, आपको मोर वैरायटी मिलती है। बट आई मैनेज एवरीथिंग, because we get everything, veg and non-veg, whatever there. I'm happy with there. ओके. ओके. तो सर आपको कभी ये नहीं हुआ कि मुझे आउटसाइड इंडिया जाके भी काम करना चाहिए? Yeah, I get several time chance to go that abroad, even USA also. मैं मुझे एक एग्जीक्यूटिव ईयर का अवार्ड लेने जाना था, यूएसए जाना था, which I cancelled it, family reasons, क्योंकि मैं वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया. Then I got chance to join the ship also as a housekeeper, but I denied due to some family reason कि मुझे इंडिया में मुझे एक्सप्लोर करना है, जब मुझे मेरा कैरियर डेवलपमेंट मेरा इंडिया में अच्छा चला, then why should I go out of country? सर हाउसकीपिंग में भी उतना ही अपॉर्चुनिटीज है जितना एफएनबी सर्विस या फूड प्रोडक्शन में आउटसाइड इंडिया? Lots of opportunity. Lots of it. Housekeeping, one of the best department to get a job is very easier in out of India. And housekeeping can get a very quick job in the ship, cruise. And see that lots of vacancies coming every day from the Gulf as well as US and now other country also they are giving. You get everywhere. एक जस्ट मीथ है कि हाउसकीपिंग फर्स्ट चॉइस नहीं रहता है, मतलब कोई जितना भी मैं हाउसकीपर को मिल चुका हूँ, आई बट गॉड ग्रेस ऑल आर दे आर वेरी यंग, मैंने विद इन 10 to 15 years दे आर हेडिंग द डिपार्टमेंट. तो इन कंपैरिजन टू एफएनबी सर्विस या फिर फूड प्रोडक्शन, मुझे लगता है हाउसकीपिंग गिव्स इमेंस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. यस, जैसे आपसे बातचीत रहा, कोई आई, अगर मैं थोड़ा सा अगर कंक्लूजन करूं तो कोई अगर आई फॉर डिटेल रहा, जैसे आपने कहा, अगर अपना टाइम को मैनेज कर सकता है, डिसिप्लिन को मैनेज कर सकता है, इट कुड प्रोग्रेस इन द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट वेरी फास्ट. यस, ट्रू. सर by this we are nearly ending the podcast, but before going to end, आज के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप पहले का जनरेशन और अभी का जनरेशन में काफी अंतर है, दे नाउ इंस्टाग्राम जनरेशन, दे एवरीथिंग दे वांट इन वेरी फास्ट. एनी पर्टिकुलर सजेशन फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर बीएचएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड व्हाट शुड दे फॉलो? क्या उनको डेवलप करना चाहिए अपने को अच्छे के प्रोफेशनल की तरह स्टैब्लिश करने के लिए? इसमें Two things you have to follow very strictly. You have to strong his communication skill. You have to strong with the
personality development. If he's follow that things, is growing anywhere, and he have to strong with the system knowledge about the how to make PPT, how to make Excel sheet, how to write in Word. So if you have anyone idea about those three things, they can grow anywhere, anything. Nothing in that. This is three keys. Just if he follow, he will reach any level. Building his communication skills, personality development, and his uh, office skills. Computer knowledge. Hmm. Like in a hotel, they wanted to system jobs. Hmm. How to make PPT. PPT, like if anything they wanted PPT, you make a PPT very quick. People they started liking you. People they started like your work. So you can grow this thing. तो जाते जाते सर मैं एक वाइटल क्वेश्चन पूछते जाऊंगा कि हाउ AI is impacting. Does AI impacting housekeeping? Are you using AI or going to use AI in housekeeping? Yeah, future we planning to use. Do you think that the AI impact will be there, positive or negative? No, it's positive. Always everything's positive. Whatever comes future is positive. We took positive. Hmm. If you think it's negative, everything negative. You started thinking positive. Right. Whatever it is in the earth, if you think positive, it will work for you is positive. The last words are very good, sir. It's really the crux, changing the rhythm. Being positive is the key, what you see. And you have that shows your progressive mindset. Thank you, sir. It's really lovingly talking with you. And thanks very much for sparing your time. I know being a housekeeper, executive house, senior housekeeper position, time is a constraint in professional life. Among that, taking time for few moments for the future students, we are really thankful for your contribution, sir. I hope this podcast really motivates students for the housekeeping and hospitality as a career, because I hope the diversification, what you spoke, and the development of personality as a hospitality, they can really learn from you professionals who are. Thank you so much for being on the podcast. It's a real pleasure for having you on. Thank you, sir. Thank you. So much. Thank you. Have a good day. Thank you.